নমস্কাৰ টাইম এইটোলৈ স্বাগতম জনাইছো মই হিমাক্ষী। ৰেচন কাৰ্ড থকাৰ পিছতো আপুনি এতিয়ালৈকে চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰা নাই নেকি? যদি লাভ কৰা নাই তেন্তে আপোনাৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ, মাত্ৰ এখন ফটো তোলক আৰু আধাৰ নম্বৰ দিয়ক আৰু তাৰ পিছত আপুনি লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ। ইতিমধ্যে বৃহৎ ঘোষণা কৰা হৈছে 3,88,000 দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে চৰকাৰী ঘৰ। গতিকে এখন ফটো তোলক আপোনাৰ মোবাইলত আৰু আধাৰ নম্বৰ দিয়ক আৰু লাভ কৰক চৰকাৰী ঘৰ। 7টা পদ্ধতিৰ জৰিয়তে আপুনি চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰি আপোনাৰ ঘৰত যদি বাহনো আছে, বাহন থকা পৰিয়ালেও এতিয়াৰ পৰা লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ। বৃহৎ ঘোষণা কৰা হৈছে, যিহেতু পূৰ্বতে এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল যে বাহন থকা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে লাভ নকৰে চৰকাৰী ঘৰ, কিন্তু এতিয়া এই কথা স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে বাহন থাকিলেও আপুনি চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব। কেৱল আপোনাক লাগিব ৰেচন কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড আৰু মোবাইলত এখন ফটো। মোবাইলত এখন ফটো তুলি কেনেদৰে আপুনি চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব আপোনাৰ বাবে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো। সবিশেষ তথ্য ক'ত আবেদন কৰিব লাগিব, আপুনিও চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নাই নেকি? যদি আপুনি চৰকাৰী ঘৰ এতিয়ালৈকে লাভ কৰা নাই তেন্তে আপোনাৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে। বিশেষ 7টা পদ্ধতিৰে যাওক আৰু চৰকাৰী পকী ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰক। 7টা পদ্ধতিৰ জৰিয়তে আপুনি চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব পাৰিব। ৰাজ্যৰ চৰকাৰী ঘৰ নোপোৱা লাখ লাখ লোকৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে। আপুনি যদি এতিয়ালৈকে ঘৰ পোৱা নাই তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই খবৰ, শীঘ্ৰে সাজু কৰক আপোনাৰ নথি পত্ৰ। 3,88,000 পৰিয়ালে লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে চৰকাৰী ঘৰ। শীঘ্ৰে আবেদন কৰক। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইতিমধ্যে লোকসকলে আবেদন কৰিছে। সাজু কৰক পেন কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, ৰেচন কাৰ্ড, বেংক একাউণ্ট, সক্ৰিয় ফোন নম্বৰ দিব লাগিব, ইনকাম চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। আপুনি আপোনাৰ ঘৰত যদি বাহনো আছে তেন্তেও আপুনি লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ। নতুনকৈ 3,88,000 লোকে লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ। এয়া ৰাজ্যবাসীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ। ৰেচন কাৰ্ড যদি আছে শীঘ্ৰে আজি আবেদন কৰক। চিন্তা আঁতৰাই 6টাকৈ বৃহৎ ঘোষণা দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰীৰ বাবে। এখন মোবাইলত ফটো তোলক, আধাৰ নম্বৰ দিয়ক আৰু লাভ কৰক চৰকাৰী ঘৰ। কোনে কোনে লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ লৈ আহিছো সবিশেষ তথ্য। কেনেদৰে কি লাগিব বা কি 6টা পদ্ধতি, এই 6টা পদ্ধতিৰে বা 7টা পদ্ধতিৰে পকী ঘৰ আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে। 1 নম্বৰতে আপুনি যদি ঘৰ পোৱা নাই, মাত্ৰ এখন ফটো তোলক আৰু ফটো তুলিয়ে লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ। 2 নম্বৰতে মোবাইলৰ এখন ফটো আৰু আধাৰ কাৰ্ড থাকিলেই লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ঘৰ। 3 নম্বৰতে কি আছে চাই লওক। আধাৰ নম্বৰৰ জৰিয়তে PM আৱাস যোজনাৰ পৰ্টেলত আবেদন কৰিব লাগিব। আজিয়ে আপুনি আবেদন কৰক আধাৰ নম্বৰৰ জৰিয়তে PM আৱাস যোজনাৰ পৰ্টেলত। 4 নম্বৰতে কি আছে, 15,000 টকা মাহিলী আয় হলেও লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ঘৰ। 5 নম্বৰতে দুচকীয়া বাহন থাকিলেও আপুনি লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ঘৰ। যিহেতু পূৰ্বতে কোৱা হৈছিল যে বাহন থকা পৰিয়ালে লাভ নকৰে ঘৰ, এতিয়া এই কথা স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে। 6 নম্বৰতে 5 একৰ পৰ্যন্ত মাটি থাকিলেও লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ঘৰ। 7 নম্বৰতে কি আছে, জিঅ' টেগিং কৰি থোৱা প্ৰতিটো দুখীয়া পৰিয়ালে লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ। গতিকে আপুনি এতিয়ালৈকে যদি চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নাই তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই খবৰটো অত্যন্ত জৰুৰী। চিন্তা আঁতৰাই 6টাকৈ বৃহৎ ঘোষণা দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰীৰ বাবে কৰা হৈছে। কোনে কোনে লাভ কৰিব এই ঘৰ? আপোনাৰ ঘৰত যদি বাহন আছে তেন্তেও আপুনি লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ। আপোনাৰ ঘৰত যদি ৰেচন কাৰ্ড আছে আপুনি লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ। আধাৰ কাৰ্ড লাগিব, ৰেচন কাৰ্ড লাগিব আৰু মোবাইলত এখন ফটো। অতি সহজ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব চৰকাৰী ঘৰ। আৰু দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ বাবে এয়া বৃহৎ এখন আঁচনি বুলি ক'ব লাগিব, বৃহৎ সকাহ বুলি ক'ব লাগিব। এতিয়ালৈকে যদি আপুনি চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নাই বা চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰা নাই, শীঘ্ৰে আপুনি আবেদন কৰক। 15,000 টকা যদি আপোনাৰ মাহিলী আয় হয় তেন্তেও আপুনি বিনামূলীয়া ঘৰ লাভ কৰিব পাৰিব। দুচকীয়া যদি বাহন আছে তেন্তেও আপুনি লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ঘৰ। আপুনি যদি এতিয়ালৈকে চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নাই শীঘ্ৰে আবেদন কৰক। ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ। আপোনাৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে, আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে, তথাপিও যদি আপুনি ঘৰ লাভ কৰা নাই শীঘ্ৰে আবেদন কৰক। আজিয়ে আবেদন কৰক আৰু লাভ কৰক চৰকাৰী ঘৰ। কিয়নো নতুনকৈ 3,88,000 দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে চৰকাৰী ঘৰ। গতিকে আজি আবেদন কৰক। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইতিমধ্যে লাখ লাখ লোকে আবেদন কৰিছে ইতিমধ্যে। গতিকে আপুনিও আবেদন কৰক। যিসকল লোকে এতিয়ালৈকে আবেদন কৰা নাই সেইসকল লোকক শীঘ্ৰে আবেদন কৰিবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আহ্বান জনাইছে। গতিকে আজিয়ে সাজু কৰক পেন কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, ৰেচন কাৰ্ড, বেংক একাউণ্ট আৰু সক্ৰিয় মোবাইল নম্বৰ। আপুনি যিটো মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰি আছে বা যিটো ফোন নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছে সেই ফোন নম্বৰ দিব লাগিব, ইনকাম চাৰ্টিফিকেটো দিব লাগিব। যিহেতু নতুনকৈ 3,88,000 দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে চৰকাৰী ঘৰ। চিন্তা আঁতৰাই 6টাকৈ বৃহৎ ঘোষণা দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰীৰ বাবে কৰা হৈছে। গতিকে বিশেষ 7টা পদ্ধতিৰ জৰিয়তে আপুনি লাভ কৰক চৰকাৰী ঘৰ। মন্তব্য আছে, মন্তব্য আগবঢ়াইছো। आपके पास मोबाइल होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए। उस आधार नंबर को लॉगिन कीजिए और अपना फोटो खींच लीजिए, अपडेट कर दीजिए। वो पूरा का पूरा जो ऐप है उसमें जानकारी का जो कॉलम है वो खुल जाएगा और उसको आप भर दीजिए। 15,000 रुपए तक भी हर महीना कमाए तो भी मकान उनको दिए जाएंगे। सर्वे में उनका नाम जोड़ा जाएगा।
एक बात और थी पुराने सर्वे में कि अगर किसी के पास मोटरसाइकिल टू व्हीलर अगर है तो उसको मकान नहीं दिया जाएगा। अब टू व्हीलर तो हर एक के पास है, गरीब भी मजदूरी करने जाता है तो आजकल तो मोटरसाइकिल पर बैठ के ही जाता है, तो टू व्हीलर में तो कई बाहर हो जाएंगे। इसलिए हमने फैसला किया है कि टू व्हीलर जिसके पास होंगे उसको भी मकान दिया जाएगा। और तीसरी चीज, और छोटे छोटे किसानों ने क्या, उनका क्या दोष है? 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन वाले और 5 एकड़ तक अनइरिगेटेड असिंचित जमीन वाले जो किसान हैं उनको भी घर दिए जाएंगे ताकि छोटे छोटे किसानों को भी घर मिल सके। हमारे ग्रामीण विकास मंत्री रणजीत जी बैठे हैं, मकान 20 लाख में से 19 लाख से ज्यादा आपने बना के गरीबों को समर्पित कर दिए, आपका अभिनंदन। और हमने पूछा जब आ रहे थे लाभार्थी हितग्राही मकान बना कि नहीं बना, तो सबने कहा मकान बन गया। आज जिन 50,000 भाइयों ने गृह प्रवेश किया है, बहनों ने, उनको भी बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन ग्रामीण विकास मंत्री बनने के बाद मामा भी पहली बार असम में आया है। हेमंत दा ने कहा अभी कि ये मकान तो बन गए 20 लाख, लेकिन जरूरत अभी और भी है। आप बताओ बहनों और भाइयों, हर गरीब का पक्का घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो दादा कह रहे हैं अभी तो आवास प्लस की सूची में से ही कुछ बचे हैं। दादा जो बन गया अब उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन आपने जो बताया और मैंने जानकारी ली, उस जानकारी के हिसाब से अभी 7,76,000 मकान, 7,76,000 मकान उस सूची में से और बनना है। और इसलिए आज ही 3,88,000 मकान तत्काल हम स्वीकृत कर रहे हैं असम के गरीबों के लिए। मेरे अधिकारी यहां बैठे, और ये कह के नहीं करूंगा, दादा भी आपको चिट्ठी भी देने वाला हूं, क्योंकि आपने पहले कह दी थी कि आओ तो कुछ लेके आना, तो लेके आया हूं। और 3,88,000 नहीं दादा, 3,88,000 अभी इसी वित्तीय वर्ष में, अगले महीने किस्त जारी कर सकते हैं आप, और उसके बाद अप्रैल के महीने में अगला वित्तीय वर्ष शुरू होते ही 3,88,000 और देके सूची को पूरा कर दिया जाएगा। आवास प्लस की सूची से एक भी लाभार्थी वंचित नहीं रहेगा। हेमंत विश्व शर्मा जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यह चमत्कार होगा। इतने मकान एक साथ कभी नहीं बने। और इतना और बताता हूं कि इन दोनों में पैसा कितना लगेगा। आज जो मकान हम देंगे, जो मैंने घोषित किया है, उसमें 9,726 करोड़ रुपए की कुल राशि लगेगी, दोनों मिला के आज के। और जो मैंने अनाउंस किया अगले वित्तीय वर्ष के, 16,159 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा गरीबों के मकान बनाने के लिए। और दादा इसमें से 90% केंद्र सरकार का, 10% आपका, थोड़ा हमारा, थोड़ा तुम्हारा, गरीबों का घर बन जाएगा, उनकी जिंदगी सफल और सार्थक हो जाएगी। लेकिन दादा यहीं तक नहीं रुके, उन्हें कहा भी तो कई रह गए, सर्वे में नाम छूट गए। तो मेरे बहनों और भाइयों, आप भी ध्यान से सुनना और बाकी को सुना भी देना कि जो मकान बचे हैं प्रधानमंत्री जी ने तय कर लिया है। सरकार बनते ही तीसरी बार उन्होंने ये तय किया था कि गरीबों के लिए 3 करोड़ घर और बनाए जाएंगे, 1 करोड़ शहर में और 2 करोड़ गांव में। तो जो छूट गए, बताओ भी छूट गए कि नहीं? कई लोग छूटे हैं कि नहीं? कई लोग छूटे हैं। तो अब जो छूटे हैं वो भी नहीं छूटेंगे। अब नया सर्वे शुरू किया जा रहा है, फिर से जो छूट गए हैं उनका नाम जोड़ने के लिए नया सर्वे। और नए सर्वे में भी 3 संशोधन किए दादा, 3 संशोधन किए हमने। रणजीत जी भी सुन रहे हैं। नंबर 1, यहां लखपति दीदी अभियान चल रहा है। पहले पीएम आवास योजना में यह तय कर दिया था कि 10,000 रुपया हर महीने से ज्यादा जिसकी आमदनी होगी उसको मकान की
पात्रता नहीं रहेगी। अब 10,000 रुपया तो हमारी लखपति दीदियां ऐसे ही कमा लेती है। अगर इसी सीमा को मान लिया तो ये तो मकान की दौड़ से बाहर हो जाएंगी। और इसलिए तय किया कि 10,000 नहीं, 15,000 रुपए तक भी हर महीना कमाए तो भी मकान उनको दिए जाएंगे। सर्वे में उनका नाम जोड़ा जाएगा। एक बात और थी पुराने सर्वे में कि अगर किसी के पास मोटरसाइकिल 2 व्हीलर अगर है तो उसको मकान नहीं दिया जाएगा। अब 2 व्हीलर तो हर एक के पास है। गरीब भी मजदूरी करने जाता है तो आजकल तो मोटरसाइकिल पर बैठ के ही जाता है, तो 2 व्हीलर में तो कई बाहर हो जाएंगे। और इसलिए हमने फैसला किया है कि 2 व्हीलर जिसके पास होंगे उसको भी मकान दिया जाएगा। और तीसरी चीज, और छोटे छोटे किसानों ने क्या, उनका क्या दोष है? 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन वाले और 5 एकड़ तक अनएरिगेटेड असिंचित जमीन वाले जो किसान हैं उनको भी घर दिए जाएंगे ताकि छोटे छोटे किसानों को भी घर मिल सके। अब ये 3 शर्तें और हटा के अब हम सर्वे करेंगे। लेकिन दादा सही सही बोलते हैं, कोई चीज छुपाते नहीं है। उन्होंने कहा कि कई बार नीचे जो सर्वे करने टीम जाती है वो ही गड़बड़ कर देती है। अब ये गड़बड़ बिल्कुल निर्मूल होनी चाहिए और उसके लिए 2 काम हम कर रहे हैं। एक तो सर्वे करता है अमला, मतलब रेवेन्यू का हो, पंचायत ग्रामीण विकास का हो, लेकिन अब हितग्राही जिसके पास घर नहीं है, कच्चा घर है, वो खुद भी सर्वे कर सकता है। मेरी बात सुनी कि नहीं आपने? खुद भी सर्वे कर सकता है। नहीं कई के नाम छोड़ देते हैं। कई तरह के परिवर्तन हमने किए थे। जैसे टीन की पहले छत होती थी तो कहते थे इसको मकान नहीं मिलेगा तो पक्का है, वो भी अब कच्चे की श्रेणी में है, उसमें भी कई मकान मिले। लेकिन मैं सर्वे की बात कर रहा था। आपके पास मोबाइल होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, उस आधार नंबर को लॉग इन कीजिए और अपना फोटो खींच लीजिए, अपडेट कर दीजिए। वो पूरा का पूरा जो ऐप है उसमें जानकारी का जो कॉलम है वो खुल जाएगा और उसको आप भर दीजिए। मतलब मेरी आमदनी 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, जो भी शर्तें हैं उनको आप खुद भर दीजिए तो आपका सर्वे की सूची में नाम आ जाएगा। कोई का नाम नहीं छूटेगा। आप अपने मोबाइल से अपना स्व सर्वे, सेल्फ सर्वे कर सकते हैं। अब एक सवाल उठता है कि सेल्फ सर्वे करने पे अगर किसी ने गलत कर दिया तो उसका वेरिफिकेशन करवा लेंगे। और दादा उस वेरिफिकेशन में हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को जिम्मेदारी देंगे कि वो वेरिफिकेशन करके आए कि कोई जानकारी गलत तो नहीं है। विभाग अपनी तसल्ली। आगे जाके अगर मुझे 6 लाख घर मिल जाता हो तो पहला चरण में जितना आवास का जिओ टैगिंग हुए थे सकलोए एकোटाকৈ घर पाई যাব। আৰু যদি আমি 6 লাখ ঘৰ পাওঁ তেতিয়াহলে যিসকলে জিঅ' টেগিং কৰি থৈ দিছিলে সকলোৱে ঘৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। যাৰ ঘৰৰ ওপৰত এখন ছাদ নাছিলে আজি তেওঁলোকে 1,30,000 শৌচাগাৰ আজি এমৰেগাত নিজে কাম কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত অসমৰ 20 লাখ মানুহে এতিয়ালৈকে ঘৰ পাইছে। 20 লাখ মানে আপোনালোকে চিন্তা কৰক যে আমাৰ অসমত যিমান দুখীয়া মানুহ আছে 35 লাখ দুখীয়া মানুহৰ ভিতৰত 35 লাখ দুখীয়া পৰিয়ালৰ ভিতৰত 20 লাখ দুখীয়া পৰিয়ালে ঘৰ পাইছে। মই আৰু 6 লাখ তেখেতক ঘৰ দিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছো। আৰু ইয়াৰ পিছতো জিঅ' টেগিং কৰি আমি অসমৰ আটাইবোৰ দুখীয়া মানুহকে ঘৰ দিয়াৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰিম।